we can glorify your name in Jesus' name. Amen. So we welcome you, Sister Pauline. We all are welcome you again among us. So let's welcome Sister Pauline. And thank you for coming, sister. We welcome you to coming. This is an honor and privilege for us that we have you to share with us the word of God. This is your time to share. Thank you. One of the previous times that we spoke, और जब मैं आखिरी बार आई थी तो मैंने जो कलाम सुनाया था, I talked about the persecutions that we can expect because of what Jesus experienced. मैंने बात की थी एक मर्तबा कि जो इम्तियाजी सलूक जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हम सब के भी साथ होता है क्योंकि हम मसीही हैं. And so, but there are persecutions, or there are problems. Let's say there are problems that we can have because of our own doing. और इम्तियाजी सलूक के बरअक्स बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे ही मर्जी से होती हैं. And so that's what I want to talk about tonight. और अब मैं उन्हीं बातों पर आज रात बात करना चाहती हूँ. Sometimes we might say something like, I'm a Christian, yet why is my life so confused? बहुत बार हम कहते हैं कि मैं तो मसीही हूँ, खुदाया मेरी जिंदगी में इतनी कश्मकश क्यों है? Why is my life so mixed up? मेरी जिंदगी जो है वो क्यों इतनी चीजों के अंदर उलझी हुई है? Why am I not prospering? मैं क्यों बरकत नहीं पा रहा या पा रही? Why are the promises in the Word of God not working for me in my life? खुदा के तमाम तर वादे मेरी जाती जिंदगी पर क्यों नहीं पूरे हो रहे? क्यों वो मेरी जिंदगी में असरअंदाज नहीं हो रहे? So these are the questions we're going to consider today. और ये तमाम तर सवालात पर आज हम बात करेंगे. I'm actually going to be asking you many questions. और आज मैं आपसे बहुत ज्यादा सवाल करने वाली हूँ. So you will be needing to be, you might want to write some of them down. और मेरा ये सवाल पूछना ये मकसद नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं. Because some of these questions you might want to pray about after the meeting. और ये वो सवालात हैं जिनके लिए आप मीटिंग के बाद दुआ भी करेंगे और आपकी जिंदगी में हो सकता है पहले से भी हों. And we're also going to cover a lot of different scriptures. और आज हम बहुत सारे हवालों को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे इन सवालों को. And to save time, I'm going to ask Evangelist Adil to read the scriptures in your language. और वक्त को बचाने के लिए मैं भाई से कहूंगी कि वो उर्दू में पढ़ दें. But you may also want to remember them or write them down. और आप इनको लिख सकते हैं ताकि आपको ये हवाले याद हों, अपनी डायरीज में लिखते जाइएगा. So another time I talked to you about how to hear the voice of God. आपको याद होगा कि पिछली बार जब मैंने हबक्कूक की किताब में से कलाम सुनाया था कि आप खुदा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं. You may not have all been at that meeting. आप में से में भी सारे उस मीटिंग में ना हों उस दिन. So I'm going to briefly review those in a minute. और मैं आपको जल्दी से 1 मिनट में वो आपको बताना चाहती हूँ. But before I do that, I want you to hear what the voice of God sounds like. और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं तो आप जरा सुने कि खुदा की आवाज कैसी होती है. So this is a message now from God to us tonight. और ये वाला कलाम खुदावंद की तरफ से आज हमारे लिए है जो हम सुनने जा रहे हैं. He said, tell my people to seek my face with their whole heart. मेरे लोगों को कहो कि वो पूरे दिल से मेरे तलबगार हों. Tell them to set aside their own plans. और उनसे कह दें कि अपने तमाम तर मंसूबों को तर्क कर दें. To set aside their agendas and their thinking. और अपनी सोच और अपने ख्यालात को साइड कर दें.
set aside their own intentions, their ideas, and their grand schemes. और अपने ख्यालात और अपने मंसूबे और अपने इरादों को एक तरफ रखकर Tell my people that nothing else will matter when they stand before me on that day. और कोई चीज भी उनकी जिंदगी में उनकी मदद नहीं फरमा सकती जिस रोज वो मेरे सामने खड़े होंगे, Except did they set aside everything else to seek my face? क्या वो उन चीजों को पूरा कर रहे हैं जो उनको चाहिए कि वो मेरे जलाल को ले सकें या मुझे रूबरू देख सकें, And to walk in my ways, ताकि वो मेरी राहों पर चल सकें, so that my plans would be established in the earth. ताकि मेरे इरादे और मंसूबे दुनिया में कायम हों। It is my dominion purposes for each of my children ये मेरे वो इलाही मंसूबे हैं जो आपकी जिंदगी के लिए हैं, that each one must seek me so that my kingdom may come into the earth. और हर एक का ख्याल या ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए ताकि मेरी बादशाहत इस दुनिया में कायम हो। In this generation, और जिस नस्ल में आप हैं, इस नस्ल में खुदा की बादशाहत कायम हो। with my children in full cooperation with me, और जब मेरी औलाद या मेरे बच्चे मेरे हुक्मरान मेरे फरमाबरदार होंगे, so that my glory and my splendor can be revealed. और मेरा जलाल और मेरी अल्लाही कुदरत इनकी जिंदगी में जाहिर होगी। Amen. सब बोलेंगे आमीन। The way of the cross is righteousness and hope. और जो रास्ता सलीब की तरफ जाता है वो बरगज़िदगी और उम्मीद से भरा हुआ है। With joy set before you as the prize. और जब आप खुशी से उस रास्ते पर जा रहे होते हैं तो वहां पर शादमानी और इनाम आपका इंतजार कर रहे होते हैं। For there is a reward of joy for all of those who endure. और आप सब के लिए इनामात होते हैं जो उस रास्ते पर चलकर वहां पहुंचते हैं। Peace and joy for the journey. और इत्मीनान और खुशी शादमानी उस सफर में आपके साथ साथ रहती है। And joy forevermore as you rest in or reside in my glory. और जब आप खुदा के जलाल पर तकिया करते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदावंद आपको अपना इत्मीनान भी साथ में बख्शते हैं। My glory will surround you like an envelope. और मेरा जलाल तुम लोगों को ऐसे घेर लेगा जैसे किसी लिफाफे में आपको बंद किया हो। You are signed and sealed and delivered, just like an envelope. You are in the envelope. You are signed, sealed, and delivered. और आप उस एनवलप में ऐसे बंद कर दिए गए हैं, आप पर यीशु मसीह ने दस्तखत कर दिए हैं, आपको बंद कर दिया है। अब आप खुदावंद खुदा के जलाल की हिफाजत में चल रहे हैं। He says, I am yours and you are mine. और खुदावंद कहता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। I am the God of hope. मैं उम्मीद का खुदा हूं। Hope that springs eternal. वो उम्मीद जो आपको अब्दी उम्मीद दिलाती है। For there is no fear in me. और मेरे पास कोई खौफ नहीं। I am pure light, energy flowing. और मैं वो रोशनी हूं जो शफाफ तौर पर तुम लोगों को तकवीयत बख्शती या रोशनी देती हूं। So how do we get that abundant life? और अब हम जिस अब्दी जिंदगी की बात करते हैं, हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? We need to know what is God's vision for me. और उस बात को जानने के लिए आपको जाती तौर पर यह जानना होगा कि खुदा का मंसूबा या रोया आपकी जिंदगी में क्या है। Many people don't know what God's vision is for them. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि खुदा का जो इरादा या रोया उनकी जिंदगी के लिए क्या है।
You know, we get our ideas about who we are and what we're going to do based on where we live. और आपको पता है कि हम ऐसे ख्यालात बांध लेते हैं जहां पर हम रहते होते हैं, उसके इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक कि हमें कैसे रहना है, कैसे गुजारा करना है और कैसे हमें आगे चलना है. The ideas of our culture, और वो ख्यालात जो हमारे रिवाज के होते हैं, might be ideas from our teachers, वो ख्यालात जो हमारे उस्ताद हमें देते हैं, ideas from our parents, वो ख्यालात जो हमारे वालिदैन हमें देते हैं, how maybe ideas from our friends. और भी ख्यालात जो हमारे दोस्त हमें देते हैं. But we need to get our idea from God. लेकिन हम सबको उन ख्यालात और इरादे की जरूरत है जो खुदावन हमें देते हैं. God knows what he put inside of you. खुदावन जानता है कि उसने आपकी जिंदगी में क्या रखा है. He put things inside of you to bear fruit in the right season. और उसने आपकी जिंदगी में सलाहियतें रखी हैं और चीजें रखी हैं ताकि आप सही वक्त पर उनको फल लाने वाले बने. Amen. आप कहेंगे आमीन. Amen. So can you read Psalm 139 verses 13 through 18? 139 साम पढ़ेंगे 13 through 18. ज़बूर 101 कम 40 और उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ेंगे. खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी. मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ. तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है. जब मैं पुशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो तू मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था. तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था. ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं. उनका मजमुआ कैसा बड़ा है. अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं. जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ. आमीन. God is not surprised about where you are or what's happened to you. खुदावन इस बात से हैरत अंगेज नहीं होता कि जहां पर आप हैं और जहां पर खुदावन ने आपको रखा है, जहां आप जिंदगी बसर कर रहे हैं. The devil often gets us to believe that God has forsaken us or he doesn't care about us. और इब्लीस बहुत बार आकर हमारी जिंदगी में ऐसे ख्यालात हमें देता है कि खुदा को हमारी एक तो फिक्र नहीं है और वो नहीं चाहता कि हम बरकत पाएं, वो हमें छोड़ चुका है. How many know that the devil's a liar? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं इब्लीस झूठा है? Also, all of us have a plan that God has made for us even before we were put in our mother's womb. और हम सब के लिए खुदावन ने पहले से मंसूबा तैयार कर दिया है, हालांकि हम अपनी माँ के पेट में भी अभी तक जो थे आए नहीं थे, तब से खुदावन ने हमारे लिए मंसूबा बंदी कर रखी है. God planned exactly for you to be here at this time in history. खुदावन का बिल्कुल यही मंसूबा था कि आप इस वक्त, इस टाइम में और इस तारीख के मुताबिक इस दुनिया में आए और इस वक्त ये वक्त गुजार रहे हों. Because he has a purpose for you. क्योंकि वो आपकी जिंदगी में मकसद और इरादा रखता है. So the prophet Jeremiah had a call. और यर्मिया को खुदावन की बुलाहट हुई. But you too were known by God before you were born, and you were set apart for such a time in the earth as this.
और आप भी जो हैं वो खुदा के मंसूबे के मुताबिक चुने गए हैं और उसके ऐन मुकर्रर वक्त पर उसने आपको इस दुनिया में भेजा है। Let's read Jeremiah chapter 1, verses 4 through 8. And as he reads this, think about this can be what God is saying about you. यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 4 से 8वीं आयत पढ़ेंगे और जब मैं पढ़ रहा हूँगा तो आप इसको अपनी जिंदगी की बाबत सोचिएगा। Okay, let me read Jeremiah chapter 1 verses 4 to 8. It says in my languages, तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावन खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। आमीन। You might not have been called to be a prophet. और आप में से शायद कुछ लोग जो हैं वो नबी होने के लिए ना बुलाए गए हों। Maybe you were called to be a pastor. आप में से मेरे ख्याल से खुदा ने आपको पासबान की खिदमत के लिए बुलाया हो। Maybe you were called to be an evangelist. मेरे ख्याल से खुदा ने आपको बिशारत की खुशखबरी देने के लिए बुलाया हो। Maybe you were called to be a teacher. और खुदा ने आपको तालीम देने वाला उस्ताद बनाकर बुलाया हो। Or an apostle. और खुदावन ने आपको रसूल होने के लिए बुलाया हो। Each of those callings can be implemented in places besides the church. और ये तमाम तर बुलाहटें जो खुदा आपकी जिंदगी में रखता है, ये एक कलीसिया में जो है वो जाते हुए या ना जाते हुए भी खुदा आपकी जिंदगी में रखता है कि कलीसिया से बाहर भी खुदा ये सब चीजें आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। For instance, the gift of pastor can be implemented in the home. और जब आप अपने घर में होते हैं तो खुदा तब भी आप पर जाहिर होकर आपको बताता है कि आपने पासबानी का काम करना है। And the gift of the calling of prophet can be actually in business, a prophet to businessmen. और calling of prophet for what, sister? A prophet to businesses. You can be a prophet not only in the church, but you can be a prophet in the place where you work, in a business. Okay, I got it. आपको खुदा ने रसूल होने के लिए बुलाया है या नबी होने के लिए बुलाया है, तो ना सिर्फ आप अपनी कलीसिया में वहां पर नबूवत का काम करेंगे, बल्कि जहां कहीं आप नौकरी करते हैं, जहां कहीं आप बिजनेस करते हैं, जहां कहीं आप कारोबार करते हैं, खुदा आपको वहां भी इस्तेमाल करेगा कि आप नबूवत करें और रसूल और नबी होने का काम वहां पर भी सर अंजाम दें। So each of you would have at least one of those callings in your life, one of those fivefold ministry callings. और आप सबको खुदा ने इन पांचों खिदमत में से, जो खुदावन अपने कलाम में हमें बताते हैं कि इन पांचों खिदमतों से वो एक खिदमत आपके लिए रखता है, और मेरे ख्याल से दो भी हो सकती हैं, लेकिन एक तो जरूर वो आपकी जिंदगी के लिए रखता है। And God wants you to know what he has called you to do. और खुदावन चाहता है कि आप उस बुलाहट को पहचाने कि वो आपको किस लिए बुला रहा है। Now God might be speaking to you in dreams. और हो सकता है कि खुदा आपके साथ ख्वाब के जरिए बात करता हो। Recently somebody shared a dream with me. और अभी कुछ वक्त पहले किसी ने अपना ख्वाब मेरे साथ शेयर किया। And I told her that's a calling from God that he gave you. और मैंने उसे कहा कि ये तो खुदा की बुलाहट है जो वो आपको दे रहा है।
So pay attention to your dreams. तो आपको अपने ख्वाबों पर ध्यान देना होगा कि खुदा आपको किस लिए बुला रहा है. Now, when God calls you, it's not about you. और जब खुदा आपको बुलाहट दे रहा होता है तो वो बुलाहट आपकी जाती तौर पर आपके लिए नहीं होती. Most of us think, I can't do that. और बहुत सारे लोग हम में से कहते हैं मैं तो ये खिदमत नहीं कर सकता. But it's not about you. It's about Jesus in you who's going to do those things through you. और ये वो बुलाहट होती है जो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में रखता है, जो यीशु मसीह आप में है और आप में रहकर अपना काम करना जानता है. It's like you're the vessel and he's the life that he wants to express himself through you. और वो आपको उस बर्तन की तरह इस्तेमाल करता है कि आप बर्तन हैं और वो आप में रहकर उस जिंदगी को लोगों तक पहुंचाता है जो वो आप में रहते हुए रखता है. Now God can also speak to you with his voice. और उसके अलावा खुदा आपको अपनी आवाज देकर भी बुलाता है. And that's what we practiced maybe the last time that I was with you. और How आपको how to hear the voice of God. कि जब मैं पिछली बार आई थी कि आप खुदा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं, मैंने सिखाया था आपको. So I want to review the scripture for that, Habakkuk chapter 2, verses 1 through 3. और आइए हबक्कूक की किताब में चलते हैं और उसी हवाले को दूसरे बाब की पहली आयत से और दूसरी आयत verses 1, 2, 3. Habakkuk chapter 2, verses 1 through 3. खुदावन के जिंदा कलाम में से पढ़ने लगा हूं. लिखा है हबक्कूक दूसरा बाब और पहली आयत से, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं. तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रा वक्त के लिए है. ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, अगरचा इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर ना करेगी. आमीन. Amen. So in that scripture, there's 4 keys for hearing God's voice. और यहाँ पर वो 4 चाबियां हैं जिससे हम खुदा की आवाज सुन सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाई थी. So key number 1 is called stillness, becoming quiet before God. और पहली चाबी ये है कि आप खुदा के हुजूर खड़े रहें और खामोशी से अपनी दुआ का जवाब और उसको सुनना शुरू करें. In Psalm 46:10 it says to be still and know that I am God. और ज़बूर 48 की 10वीं आयत में लिखा है कि ठहरे रहो और देखो कि मैं ही खुदावंद खुदा हूं. So if we're talking, praying, and not listening and being quiet, we aren't going to hear from God. और अगर हम बात करते रहें और अपनी ही दुआएं खुदावंद के हुजूर रखते रहें और खामोशी से उसकी ना सुने, तो हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते. So key number 2 is vision, meaning to use your spiritual eyes and your spiritual ears to see and hear what God is going to say to you. और दूसरी चाबी वो है कि जो रोया आप देखें, उसको देखने के लिए आप अपनी रूहानी आंखों को और कानों को इस्तेमाल करें कि खुदा आपसे क्या फरमा रहा है, और आप उस रोया को जब खामोशी में खुदा आपको दिखा रहा हो उसे देखें और उसे लिखते रहें. So as you're quiet and you're waiting to hear from God, he might speak to you in words or thoughts. और जब आप खामोशी से खुदा की आवाज सुन रहे हो तो वो आपसे अल्फाज बोल सकता है या आपको ख्यालात दे सकता है. He might speak to you with an impression of, you just think you're understanding something. और वो आपको उन चीजों की बाबत बता सकता है कि जो आपको उस वक्त समझ आ रही हो. He might speak to you in a song or in an image.
और वो आपसे गीतों के जरिए बात कर सकता है, वो आपको कोई तस्वीर या तस्वुर देकर आपको सिखा सकता है, He might speak to you with scripture verses. और वो आपसे कलाम की आयतों को लेकर आपसे बात कर सकता है, आप पर जाहिर कर सकता है उनके मतलब। So as you're still and quiet before God, और जब आप खामोशी से वो वक्त खुदा के हुजूर उसको सुनने में गुजार रहे होते हैं, you're looking to see if there's any vision and you're listening to hear if there's any thoughts or words coming from God. और उस वक्त आप देखें कि क्या खुदावन आपको रोया दे रहा है, या खुदा आपको ख्याल दे रहा है, या अल्फाज दे रहा है, या तसव्वुर दे रहा है, या गीत दे रहा है। And key number 3 is flow, like a river flows. और तीसरी चाबी ये है कि वो ख्यालात जो हैं वो दरिया की तरह बहते हैं। These thoughts and ideas are going to flow from God to you. और ये ख्यालात और ये बातें खुदावन से उस दरिया की तरह, जो बहता दरिया है, वो आपकी जिंदगी में जारी करेगा। So that's what you're looking for and listening for. और आपको करना क्या है कि आप खामोशी से उससे सुने और देखें खुदा आपकी जिंदगी में क्या करता है। And key number 4 is called journaling. It means that you write down what God is showing you or what you're sensing or seeing or hearing from God. सबसे चाबी ये है कि जो कुछ खुदा आपको दे रहा हो, वो ख्याल हो, वो आवाज हो, वो कोई भी चीज हो, आप उसको लिखें, उसको महसूस करें, और उस एहसास को, जो कुछ खुदा आपको दे रहा हो, उसे आप लिखें। Jesus wants you to be his student. यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके शागिर्द बने और तालीम हासिल करें। You know he's called a teacher, right? आपको याद है कि यीशु मसीह को लोग कहते थे ऐ उस्ताद। So this means you should have a notebook so that when he teaches you, you can write it down. तो इसका मतलब है कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए कि जब वो आपको सिखा रहा हो तो आप उसको लिख लें। And I'm just going to review those keys one more time, and then we're going to go into the rest of the message. और चार चाबियों को एक बार फिर से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। So key number 1 is stillness, becoming quiet before God. पहली चाबी कि आप खुदा के हुज़ूर खामोशी से उसकी आवाज को सुने जब तक वो आपसे बात ना करे। Key number 2 is vision, looking and listening to see what he's going to say to you. और दूसरी वो रोया जो वो आपको दिखाए, आप उसे देखें और सुने कि वो आपसे क्या कहता है। And the thoughts of God are going to flow to you. फिर खुदा के ख्यालात आपकी जिंदगी में दरिया की तरह जारी होंगे। And then you need to be writing them down so that you have a record of what God is teaching you. और फिर आप उनको लिख लें कि खुदा आपको उस दिन में क्या सिखा रहा है। So if you don't know what God has called you to do, that can be one of your questions. और अगर आपको पता ही नहीं है कि खुदावन की आपकी जिंदगी में बुलाहट क्या है, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आपकी जिंदगी में आपके पास है। You can ask God, what did you put me on the earth for? What's my purpose? आप खुदा से कह सकते हैं कि खुदा आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। So these are some questions. If you already know what your call is, or if you don't know, these are some questions. और अब कुछ सवालात हैं जो मैं आप करने वाली हूँ कि अगर तो आपको पता है कि आपकी बुलाहट क्या है, ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो ये सवाल जरा आप सुनिएगा। You can ask God, what is my call from you? आप उस वक्त में खुदा से कह सकते हैं कि खुदाबंद मेरी बुलाहट क्या है, आप मुझे क्या चाहते हैं कि मैं करूं। And even if you know what it is, these are some questions to ask. When did I receive my call? और अगर आप उस बुलाहट को नहीं जानते तो आप खुदा से कह सकते हैं कि खुदावंद मैं कब उस बुलाहट को समझूंगा या पाऊंगा जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। How did God call me? Maybe he called you in a dream. Maybe you had an experience where he actually came into your room and spoke to you. और आपकी जिंदगी में ये सवाल होंगे कि
कब खुदावन मुझे बुलाएगा, कैसे खुदावन मुझे बुलाएगा। हो सकता है उसने ख्वाब में आकर आपसे बात की, हो सकता है वो आपके कमरे में ज़ाहिरी तौर पर आपके पास आया हो। Some people have a very powerful experience with God, and other people just have a quiet understanding. बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बहुत कुदरत वाला तजर्बा खुदावन यीशु मसीह कराते हैं, और इसी तरह दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में बड़ा पुरसुकून सा तजर्बा खुदावन उनकी जिंदगी में कराते हैं और बात करते हैं। One is not more important than the other. और दूसरा, हर एक जो है वो किसी से बढ़कर नहीं है। Maybe somebody gives you a testimony and it sounds so fantastic. और हो सकता है किसी ने अपनी गवाही आपसे शेयर की हो और वो आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत शानदार है। But when God spoke to you, it wasn't like that. It was quiet. और जब खुदा आपसे बात कर रहा हो और आपसे बात करने वाली गवाही उससे मिलती ना हो, और आप उसकी गवाही से बहुत बरअक्स हो, और खुदावन बड़े सुकून से आपसे बात कर रहा हो। Don't compare yourself to other people. कभी भी अपनी जात को दूसरों के साथ मुंसलिक ना करें या मिलाने की कोशिश ना कीजिएगा। God calls people in different ways. खुदा लोगों को अलग अलग तरह से बुलाता है। Then you can ask God, what specific message or activity did you give me to do? फिर आप खुदा से ये भी बात कर सकते हैं कि खुदावन आपने जाती तौर पर क्या तालीम या कलाम या चीज मेरी जिंदगी में रखी है कि जिसे मैं सरंजाम दूं। Then ask yourself, do I understand exactly what he wants me to do? फिर आप अपने आप से एक सवाल करें, क्या मैं वाकई इस बात को समझता या समझती हूँ कि खुदा मुझसे क्या काम लेना चाहता है। If I don't, I need to go back to him in prayer until I know what he wants. और अगर आपको नहीं पता, आप में से कोई ऐसा शख्स है, तो फिर वो दुआ में जाए और आपको दुआ में जाकर खुदा से पूछना होगा। Now we can have a problem because maybe we know what he wants, but we have deviated from that and we're not doing what he wanted us to do. और बहुत बार मसला तब पैदा होता है कि जब हमें पता होता है कि वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, लेकिन हम अपनी ख्वाहिशात को आगे रखते हुए उसकी मर्जी को पीछे करते हैं और वो नहीं करते जो खुदा चाहता है कि हम करें। Now, if that's you, God does not condemn you. और अगर आप हैं, आप में कोई ऐसा है जिसकी हालत ऐसी है, तो परेशान ना हो, खुदावन आपको सजा नहीं देना चाहता। But he wants you to come to him and repent. वो चाहता है कि आप उसके पास वापस आएं और तौबा करें और उस बुलाहट को पहचानें। Say, God, I'm sorry. I did not do what you asked me to do. आप खुदावन के पास आए, उसे कहे, खुदाया मुझे माफ कर, क्योंकि मैंने वो नहीं किया जो आप चाहते थे कि मैं आपके लिए करूं। Maybe you were afraid. आप में से कोई ऐसा होगा कि शायद मैं खुदा के पास जाऊं, आप बहुत डर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। Maybe you didn't think that you were good enough to do that. और हो सकता है कि आप ऐसा भी सोचते हो, हाँ मैं चला जाऊंगा, मैं माफी ले लूंगा। Just go to God and repent. Tell him now, I'm willing. What should I do now? और अभी आप खुदा के हुजूर जाएं और उस बात के लिए माफी मांगे और कहें, खुदावन मैं तैयार हूं, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। Now, all of these questions, you should be using those 4 keys to understand the flow from God. और इन तमाम तक सवालात को आप खुदावन के हुजूर रखें, और वो जो 4 चाबियां मैंने आपको दी हैं अपने सवालों में इस्तेमाल करें, और खुदावन के उस बहते मसा को जो दरिया की तरह बहता है उसे हासिल करें। Now, some of you might be in ministry and you are very much invested in the ministry that you're doing. और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके पास बहुत रुपया पैसा है और वो अपना रुपया पैसा अपनी खिदमत में लगा रहे हैं। But now the question is, am I willing to stop what I'm doing if God asks me to? और अगर
खुदा आपसे कहे कि रुक जाओ, ये ना करो जो तुम अभी कर रहे हो, तो क्या आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि खुदावन आपसे दर हकीकत क्या करवाना चाहता है? If I'm not willing, then God is no longer on the throne, but I've taken over and I'm doing my own thing. और इसका मतलब ये है कि आप खुदा को उसके तख्त पर बैठा हुआ और इंसाफ करने वाला नहीं समझते, और आप उसकी मर्जी को रद्द करके अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। I need to come back to God and repent और आपको खुदा के पास आना होगा, माफी मांगनी होगी, and find out what He wants me to do. और उस बात को और उस बुलाहट को समझे कि वो दर हकीकत आपसे कौन सी खिदमत लेना चाहता है। We're in a time right now in the history where things are changing changing greatly. And you've experienced that because of the persecution you've been under. और हम ऐसे वक्त में से गुजर रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से चीजें तब्दील होती जा रही हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस इम्तियाजी सलूक को भी सहा है, और बहुत सारे बुरे हालातों में से आप पहले से ही गुजर रहे हैं। 2 years ago, how many of you heard about Zoom? One more time, please. 2 years ago, did any of you use Zoom? 2 साल पहले कोई Zoom को इस्तेमाल करता था? So we've had to change how we do ministry. और आप देखें हम कैसे तब्दील होकर खुदा की खिदमत के लिए Zoom को इस्तेमाल कर रहे हैं। What if we said, I'm not going to change, I'm going to just do everything the way I used to? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खुदावन मैं अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहता, मैं तो वैसा ही करूंगा जैसे मैं पहले से कर रहा हूं। We have to be flexible and we have to take an understanding from God about what to do when things change. हमें अपने आप को ऐसा बनाना है और ऐसा ढालना है कि जब चीजें तब्दील हो रही हों, खुदावन उनको बदल रहा हो, तो हमें भी अपनी खिदमत के तरीकों को वैसे वैसे बदलते जाना है। So if you have never received your purpose or your vision from God, और अगर आपने अब if you've never received your purpose or your vision from God, I'm going to ask you to commit to seek him to find out what he's written in his book about you. और अगर अभी तक उसके इरादा को अपनी, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे जाने कि उसने अपनी किताब में आपके लिए क्या रखा है, ताकि आप उसके मकसद को और अपनी बुलाहट को समझ सकें। In Psalm 139, it says that God has a book that has every day of your life written in it. ज़बूर 139 में लिखा है कि खुदावन की किताब है, उसमें आपके हर रोज की कहानी लिखी है कि आप क्या करते हैं। So if you don't know what God wants, you ask him what's written in the book about me. और अगर आपको नहीं पता कि खुदा क्या चाहता है, तो आप खुदा से कहें कि खुदावन उस किताब में मेरे लिए क्या लिखा है, मुझे बताएं कि मैं वही करूं। So now another question is, am I serving God fully? और दूसरा सवाल ये है कि क्या मैं पूरे तौर पर खुदा की खिदमत कर रहा हूं, पूरे दिल से या सारे वक्त में? Have I obeyed God what he's asked me to do? क्या मैं खुदा का फर्मा बरदार हूं या फर्मा बरदार हूं जो वो मुझे कहता है कि मैं करूं? You know, there's a lot of people, they think, I'm going to do this good thing for God. आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं ये अच्छी चीजें खुदा के लिए करूं। But the problem is the only thing that God supports and sponsors you for are the things that he has asked you to do. लेकिन आपको एक मैं खास नुक्ता बताना चाहती हूँ कि खुदा उन चीजों के लिए आपको मुहैया करता और फराहम करता है जो कि वो चाहता है कि आप उसके लिए करें।
Remember Abraham and Sarah? आपको याद होगा अब्राहम और सारा, And God had a plan that he was going to give them a child. कि खुदा का मंसूबा उनके लिए ये था कि खुदा उनको औलाद दे, बेटा दे, But they got tired of waiting. और वो उसके इंतजार में थक चुके थे। So Sarah said, Abraham, why don't you have a child with Hagar? और वो अपनी बीवी, उसकी बीवी ने अब्राहम से कहा कि तू जो है उस लौंडी से क्यों नहीं औलाद ले लेता। So Abraham having a child with Hagar was like us doing what we think is going to be best or better. और अब्राहम ने अपनी लौंडी से शादी की और वो बेटा हासिल किया, और वो बेटा इस बात की मिसाल है कि हमें उस हालात में जो अच्छा और बेहतर लगता है कि ये वाला काम और ये वाली चीज खुदा के लिए बहुत अच्छी होगी, हम उसे कर बैठते हैं। But God had his plan, and so it was God's plan that had to be fulfilled. और आपको पता है कि खुदा हमेशा अपना मंसूबा रखता है और उसे पूरा भी करता है। Another question to ask yourself is, am I in God's set timing and the place where he wants me to be? और एक और सवाल आप जो अपनी जात से कर सकते हैं कि मैं वहां पर हूं जहां पर खुदावंद ने मुझे रखा है, क्या ये वो वक्त है जिसमें खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है कि नहीं। Sometimes God will reveal to you his plan for you, but there's a preparation but you need to do preparation. और बहुत बार खुदा अपना मंसूबा आपकी जिंदगी में रखता है जिसके लिए वो आपको तैयार करता है और आपको तैयारी का वक्त देता है कि पूरा करने के लिए आप पूरे तौर पर तैयार हो जाएं। Some people rush out ahead of God. और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी करते हैं कि खुदा हम ये खिदमत के लिए तैयार हैं और करना शुरू कर देते हैं। What God wants to do is show you who you are so you can prepare to be that servant of God. पहले खुदा आपको दिखाता है कि आप क्या हैं और खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में, और वो उसके लिए आपको तैयार करता है और फिर अपनी खिदमत आपसे लेता है। And many times there's a lot of testing that God takes you through to learn the things you need to learn to fulfill the call in your life. और बहुत बार ऐसी आजमाइश आती हैं जिनमें से खुदा आपको गुजरने देता है और आपको तैयार करता है कि आप उस इरादा और मकसद के लिए तैयार हो जाएं जिसके लिए खुदावंद आपको भेजना और आपसे खिदमत लेना चाहता है। Now, here's a funny question. और अब एक और बड़ा मजाकिया सवाल है मैं करने लगी। Have I been trying to figure out what to do by watching television ministers or other people who are ministering? क्या मैं अपने आप को उन लोगों, उन खातमीन को देखकर वैसा बनाना चाहता हूँ जिनको मैं टीवी पर देखता हूँ या सुनूं, और फौरन ये कहता हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊं। One time I was in the home of some young pastors. और एक बार का जिक्र है कि मैं बड़े नौजवान खातमीन थे, उनके घर पे थी। And they were watching a certain pastor. They just loved the way he ministered. और वो टीवी पर कुछ पासबानों को देख रहे थे और उनको बड़ा प्यार था, वो बड़ा पसंद करते थे उन पादरियों को कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कलाम सुनाते हैं। They watched him over and over and over again, just so they could say things the same way and make the same moves as that pastor. और वो उस पादरी को लगातार सुनता रहता था और उसके जैसा बनना चाहता था कि जैसे जैसे वो कलाम सुनाता है उसकी बातें वो याद कर करके, और जैसे जैसे वो इशारे करता है वो वैसा बनना चाहता है। God does not want you to copy other people. खुदावंद नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे की नकल करें। God has a unique plan for you and how he's going to use you. और खुदावंद का आपके लिए एक खूबसूरत और
अलग और इलाही मंसूबा है जिसमें वो आपको खिदमत के लिए बुलाता है। Now, another question is, am I under the mentorship of a mature person who truly serves God with all their heart? और अब एक और सवाल, क्या मैं वाकई ऐसे खादम या उस्ताद से सीखता हूँ या उनसे रहनुमाई लेता हूँ जो पूरे तौर पर अपने पूरे दिल से खुदावन की खिदमत करता और खुदा से प्यार करता है। So he doesn't want us to copy other people, but he wants us to learn from other people. खुदा नहीं चाहता कि हम किसी दूसरे की नकल करें, पर वो ये जरूर चाहता है कि हम किसी दूसरे से कलाम को और उन बातों को जो हमें समझ नहीं आती हम सीखें। Another question is, am I spending time with the Lord, allowing him to teach me his ways? और एक और सवाल, क्या मैं अपने आप को पेश करता हूँ और खुदा के हुजूर ये सवाल करता हूँ और ये इजाजत देता हूँ कि खुदावन मुझे तैयार कर, मुझसे बात कर, मुझे बता कि मुझे क्या क्या करना है। Now, this is a really difficult question. Have I been listening to my family and my friends and bowing to the pressure of their ideas? ये बड़ा खास सवाल है। क्या मैं अपने खानदान का, भाइयों बहनों के इरादों को और सवालों को सुनकर वैसा ही करना चाहता हूं और उनकी मर्जी को पूरा करना चाहता हूं, ना कि खुदा की। Many of us have resistance from our families about what God has called us to do. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने खानदान के खिलाफ मज़ामत करते हैं और उस इरादे को पूरा करते हैं जो खुदा हमारी जिंदगी में रखता है और उस बुलाहट के पीछे जाते हैं। But we have to remember that our allegiance to God has to be first in our life. और हमें हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि हमारी जिंदगी में पहला मकाम और पहला दर्जा खुदा के लिए होना चाहिए। In Acts 5:29, Peter and the other apostles said, "We must obey God rather than men." इमाल 5:19 में लिखा है कि हमें सबसे बढ़कर खुदा के ताबे होना है, ना कि इंसान के। Another question is, have I made my own vision and not gotten my vision from God? और एक और सवाल, क्या मैंने अपनी ही रोया कायम कर ली है कि मैंने रोया खुदा से ली है जिसके लिए उसने मुझे खड़ा किया और मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। So can you see how all your answers to these questions can actually cause problems in your life if you're not lining up with what God wants? One more time, sister. Okay. If we aren't lining up with what God has asked us to do, that is going to cause problems in our life. और वो जो चीजें हैं खुदा हमें करने के लिए कहता है, उनके लिए हमें बहुत सारी मुसीबतों और दुखों का सामना होगा और करना पड़ेगा। There's a certain young man that I know. और कुछ नौजवान खादमीन हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। He's been trying to get a job for many years. और वो बहुत सालों से नौकरी की तलाश में था। But it doesn't work out. लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। And it's because he's fighting what God has asked him to do. क्योंकि वो कर रहा था, खुदा से लड़ाई कर रहा था और उस इरादे को पूरा नहीं कर रहा था जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया। So God can close doors because you're resisting him. इसलिए खुदा ने उसके सब दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि वो खुदा के खिलाफ खड़ा हो गया और उसके इरादे को पूरा नहीं कर रहा। So now we're going to also look at some characteristics that we might have. और आइए अब जरा उन सलाहियतों को और देखते हैं जो हमारी जिंदगी में खुदा रखता है। Have I been grumbling and complaining and blaming God for my life situation? क्या मैं अपनी जिंदगी के तमाम तर मसाइल के लिए, दुखों और मुसीबतों के लिए खुदावंद पर चिल्लाता हूँ
खुदावंद को बुरा भला कहता हूं या खुदा को कहता हूं कि तूने मेरी जिंदगी में ऐसा कर दिया। You cannot walk in continued carnality, disobedience, and sin and expect God to bless it. आप कभी भी नापाकी, हरामखारी, शहवत परस्ती और बुरे ख्यालों में चलते हुए और ऐसी जिंदगी गुजारते हुए जो आप गुनाह में गुजार रहे हो और उसके साथ खुदा से कहें कि खुदावन मुझे बरकत भी दे, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। And sometimes it's hard for us to adjust when things are changing. और बहुत बार बड़ा मुश्किल होता है कि हम संभल सकें और अपनी जात को कायम रख सकें जब चीजें हमारी जिंदगी में बहुत तेजी से तब्दीली कर रही हों या बदल रही हों। Sometimes we are in shock and denial. और बहुत बार हमारी जिंदगियों में हमें ऐसा झटका लगता है कि हम उस चीज के खिलाफ खड़े होते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। And then we might try to bargain with God. और फिर हम खुदावन पर बोलना शुरू करते हैं या खुदा से कहते हैं खुदा ऐसा ना कर। Or we might get depressed. और उस चीज के अमल से हो सकता है हम दबाव में आ जाएं, परेशान हो जाएं। But the healthier we can be and the sooner we can get to accepting the situation and adjusting to it, the better we're going to be. और जैसे ही आप हालात के साथ अपने आप को सुधार लेंगे या उनमें रहना या वक्त गुजारना सीख जाएंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा और उतनी ही जल्दी आपको खुदा बहाल करेगा और आप बहाली की तरफ आएंगे। So we might start out when things change by grumbling and complaining, but we need to move from there to accepting and readjusting so that we can have peace again. हाँ, हम उन चीजों को की तब्दीली पर चिल्ला सकते हैं, खुदा से हम शिकायत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम उन चीजों को समझते हुए अपनी जात को उसमें दुरुस्त करें और उन चीजों के साथ अपने आप को तब्दील करें ताकि खुदा के इरादे और मर्जी के मुताबिक हम आगे बढ़ सके, ताकि हमारी जिंदगी में इत्मीनान और अमन आए। But some people get stuck in grumbling and complaining. लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं खुदा के हुजूर शिकायत करने में और खुदावन के हुजूर बुड़बुड़ाने की वजह से फंस जाते हैं जिंदगी में। If that's you, if you're stuck there, then repent. और अगर ऐसे शख्स आप हैं जो फंस चुके हैं, तो आपके पास मौका है, आपको तौबा करनी होगी। And ask God to give you wisdom and understanding to know what to do now. खुदा के पास आए, खुदावन से कहें खुदावन मुझे समझ दे, खुदावन मुझे हिकमत दे कि अब मुझे अगला कदम क्या उठाना है। Can you read Philippians chapter 2 verses 14 and 15? फिलिपियों 2 बाब की 14वीं और 15वीं आयत लिखेंगे और हम जरा ठीक होकर लिखेंगे, बैठेंगे, ताकि हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है ताकि बाद में हमें किसी नदामत का सामना ना करना पड़े। चैप्टर 2 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, सब काम शिकायत और तकरार बगैर किए करो ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोग में खुदा के बेनक्श फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो। Amen. Amen. Another question to ask yourself is, और अगला सवाल जो आपको अपनी जात से पूछना है वो ये है कि am I seeking first his kingdom and his righteousness? क्या मैं पहले खुदा की बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश कर रहा हूं कि नहीं? Can you read Matthew 6:33? Yes.
बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। Amen. These others you can just interpret. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace. और अपनी बुरी रवैयों से भाग और उन चीजों को पकड़ ले जो अच्छी हैं, बेहतर हैं। ईमान, मोहब्बत और उम्मीद, इनको पकड़े रह। Along with those who call on the Lord out of a pure heart. और इन सब बातों के साथ तो खुदावन की पाक मर्जी को जान और उसकी बुलाहट को समझ। And in Matthew chapter 5 verse 6 it says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." मत्ती की इंजील 5वें बाब में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असूदा किए जाएंगे। We can get passionate, hungering and thirsting for righteousness, and then God says that he will fill us. हमारी जिंदगी में खुदावन की तरफ, उसकी रास्तबाजी की तरफ बहुत भूख और प्यास होनी चाहिए और तड़प होनी चाहिए, क्योंकि खुदा कहता है जब आप ऐसा करेंगे तो वो उसको पूरा करेगा। So another question to ask is, am I under demonic bondage because I'm holding unforgiveness in my heart towards someone? और एक सवाल और अपनी जात से पूछें कि क्या मैं दुश्मन यानी अबलीस की शैतानी कुव्वतों के कब्जे में तो नहीं हूं कि जिनमें रहते हुए मैंने किसी को माफ नहीं किया और मैं ना माफ करने के दबाव में जिंदगी बसर कर रहा हूं। And so one of the sessions that we did, we worked on forgiving people. And it's very, very important because Jesus said, if you don't forgive, that God will send tormentors to you. Tormentors are. आपको याद होगा कि जब हमने पिछली बार माफी के तौर पर कलाम सुना था, तो मैंने आपको बताया था कि माफ करना कितना अहम और जरूरी है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा, तो वो जलवादारों को भेजेगा ताकि वो आपको वहां पर भेजे जहां रोना और दांतों का पीसना। Another question is, am I guarding my eyes? और एक सवाल और, क्या मैं अपनी आंखों की हिफाजत करता या करती हूं? What am I watching on television or on my cell phone? मैं अपने मोबाइल पर और अपनी टीवी पर क्या कुछ देखता हूं? क्या मैं अपनी आंखों की हिफाजत करता हूं कि नहीं? Am I guarding my heart? क्या मैं अपने दिल की हिफाजत करता हूं कि नहीं? I've traveled in many nations, and I don't know if you have televisions now where you're at or not, but sometimes I end up staying in a pastor's home. और मैंने पूरी दुनिया में जहां कहीं मैं कलाम सुनाने जाती हूँ, मैंने देखा है कि लोगों के पास टेलीविजन होते हैं। मुझे नहीं पता अब जहां है आपके पास टेलीविजन है कि नहीं। मैं खादम के घर में रुकी, and I'm always amazed at, they have their television on and there's like sensual carnal music on there. और मैं जब उनके घर में रुकी तो उनके घर में टीवी पर ऐसे बुरे बुरे म्यूजिक चलते थे जो शैतानी म्यूजिक थे। Or they're watching some television program that's it's not good for them to watch. और वो ऐसे टीवी के प्रोग्राम्स देखते थे, सीरियल देखते थे जो उनके लिए अच्छे नहीं थे, वो बहुत बुरे थे। When you watch television or when you look at things on your cell phone, whatever spirits are behind that come into your home. और जब आप ऐसे टीवी ड्रामे और सीरियल देखते हैं जो आप उस वक्त अपने फोन पर और अपनी टीवी में देख रहे हो, उनके पीछे जो रूहें होती हैं और जो उनके मकसद होते हैं, वो फौरन आपकी जिंदगी में और आपके घर में दाखिल।
Okay, can you read Matthew 6:22 through 23? मत्ती की इंजील 6 की 22 और 23 में लिखा है, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। And Proverbs chapter 4, verses 23 through 27. इमसाल 4 बाब की 23वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। कजगू मुंह तुझसे अलग रहे, दरोगो लब तुझसे दूर हूं, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पांव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पांव को बदी से हटा ले। आमीन। I hope you're seeing now, when we read these scriptures, that God has given us guidelines on how to live. और मेरा ईमान है कि जब हम इन आयतों को पढ़ रहे हैं तो आप खुदावंद के उस मंसूबे को और उसकी हदायत को समझ रहे हैं कि वो कैसे चाहता है कि हम अपनी जिंदगी बसर करें और किन राहों पर हमें चलना है और कैसे अपनी जिंदगी बसर करनी है। And when we don't pay attention to these, our life goes astray. और जब हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते तो हमारी जिंदगी तब मुश्किल में पड़ जाती है। Or we might have problems and we cannot figure out, why do I have these problems? और फिर हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं पर हम उनका अंदाजा ही नहीं लगा सकते, या हमें पता ही नहीं चलता कि ये सारी मुश्किलें क्यों हैं हमारी जिंदगी में। So I'm hoping that these questions will help you know why you might be having problems. और ये जितने मैंने सवाल आपके सामने रखे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी मदद फरमाएंगे कि आप अपनी जिंदगियों में उन मुसीबतों में या उन दुखों में या उस कैद में क्यों हैं। Another question to ask is, am I a living sacrifice, and am I being transformed by the renewing of my mind? और एक और सवाल, क्या मैं जिंदा कुर्बानी हूँ, पाक कुर्बानी हूँ? क्या मैं खुदा को पसंद आने वाली हूँ? और क्या मैं अपनी जिंदगी को, अपने ख्यालात को तब्दील के नाम मखलूक बन रहा या बन रही हूँ कि नहीं? So can you read Romans 12 verses 1 and 2? रोमियो 12 बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस अब भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। And then 2 Corinthians chapter 3 verses 6 through 18. Second Corinthians chapter 6. Chapter 3. 3. Okay. Verses 16 through 18. लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावन की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह
मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। Amen. So we can be transformed by gazing at the glory of God. और हम जो हैं वो खुदा के जलाल के वसीला से दर्जा दर्जा बदलते जाते हैं। When you spend time worshiping God and then you use the 4 keys to hear from Him, you can be changed. और जब आप खुदा के हुजूर उसकी सताइश में वक्त गुजारते हैं और वो 4 चाबियां जो मैंने आपको सिखाई हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुदा के जलाल को हासिल करना शुरू करते हैं। So another question is, what is happening in my thoughts and my imaginations each day? और एक सवाल और कि मेरे ख्यालों में और मेरे तस्वुरों में हर रोज क्या चलता रहता है। Some people keep thinking over and over and over about things that are not good. बहुत सारे लोग उन तस्वुरात और चीजों पे बारहा बार सोचते हैं जो अच्छी नहीं है। So we have to pay attention to what are we thinking about every day. So हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम हर रोज क्या सोचें। So there's different things like jealousy and anger and hatred. और बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें हैं, यानी गुस्सा, नफरत, बिदतें, बुग्ज। If we're thinking about those things, we are not on the right path. और अगर हम ऐसी चीजें सोच रहे हैं तो हम सही और दुरुस्त राह पर नहीं चल रहे। We need to take our thoughts captive. That means we need to realize, what am I thinking about? हमें अपने अपने ख्यालात को बांधना होगा और हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बार-बार मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। And we need to make those thoughts be obedient to the way that Christ would think. तो हमें अपने ख्यालात को यीशु मसीह के ताबे करना होगा और वो करना होगा जो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम करें। Can we read 2 Corinthians 10 verses 3 through 6? दूसरा कुरिन्थियों 10 की 3 से 6 पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्मा बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। आमीन। Are my thoughts filled with anxiety or the wrong things? क्या मेरे ख्यालात दबाव और गलत चीज भरे हुए हैं? क्या मैं उनके बारे में सोचता हूँ हर रोज? And we read Philippians chapter 4, 6 through 9. फिलिपियों 4 बाब 6 से 9वीं आयत में लिखा हुआ है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दुर्खास्त दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदावन का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं
और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। Amen. Another question to ask is, am I walking in pride, or am I teachable like a little child? एक और सवाल, क्या मैं अपने तकब्बुर में चलता हूं, या कि मैं तैयार हूं कि मुझे एक बच्चे की तरह सिखाया जाए जैसे उसे तालीम दी जाती है? The Bible says that pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Can we read these scriptures? I don't have an exact translation in Urdu. Okay, we can read Proverbs 16 through 20. Okay. इमसाल 16वें बाब की 16वीं आयत से 20वीं आयत का मुतालिया कर, वहां पर लिखा है Proverbs 16 through 20. Okay. हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है, और फहम का हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। रास्तकार आदमी की शहरा ये है कि बदी से भागे, और अपनी राह का निगहबान अपनी जान की हिफाजत करता है। हलाकत से पहले तकब्बुर, और जवाल से पहले खुदबीनी है। मस्कीनों के साथ फरोतन बनना मुतकब्बरों के साथ लूट का माल तकसीम करने से बेहतर है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावन पर है मुबारक है। आमीन। So Jesus said that anyone that doesn't receive the kingdom of God like a little child will never enter it. और यीशु मसीह ने कहा, जब तक आप अपने आप को बच्चे की मानिंद नहीं बनाते, तब तक आप खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। And Jesus was thanking the Father because he has hidden things from the wise and the learned people, but he reveals them to little children. और खुदा उस वक्त बाप की तरफ ध्यान रखे हुए और सोच रहे हैं, क्योंकि बाप ने मुनासिब जाना कि अक्लमंदों और समझदारों से वो चीजें छुपा ले और उन पर जाहिर करे जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, ताकि वो खुदा की बादशाहत के भेदों को समझ सकें। Another question that we should ask is, how do I treat others? एक और सवाल कि हम दूसरों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं या रखते हैं? Do I treat them the same way that I want to be treated? क्या मैं उनके साथ वैसा ही रवैया रखता हूं जैसा मैं चाहता हूं कि वो मुझसे रखें? And we're told that we should not judge others, because however we judge them, that's how we're going to be judged. हमें खुदावंद के कलाम ने बताया है कि किसी को जज ना करो, इसलिए कोई तुम्हें भी जज ना करे। उर्दू का लफ्ज मुझे भूल गया है, आप समझ जाइए। One way that this happens is when we gossip about other people. We're judging them. We're gossiping and story. Yeah, please complete. No, yeah. One way that we do that is when we gossip about other people, we're judging them. हम एक बात हम हमेशा याद रखें कि जब हम किसी दूसरे का जज करते हैं या किसी का इंसाफ करते हैं, तो हम उसके बारे में चुगलियां करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में हम जो है वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जो मुनासिब नहीं होती।
Basically, God is telling us the attitude that we have towards other people is the attitude that is going to come back to us. दर हकीकत खुदावन यीशु हमें यहाँ ये बात सिखाना चाहते हैं कि जो रवैया हम दूसरों के साथ रखते हैं या इख्तियार करते हैं उसके लिए हम खुद भी तैयार हों क्योंकि वही रवैया हमसे भी रखा जाएगा जिस पैमाने से तुम नापते हो. And let's look at 2 Timothy chapter 2, verses 23 through 26. 2 Timothy chapter 2, verses 23 through 26. दूसरा तिमोथियस 22 की 26 तक. जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो, लेकिन बेवकूफी और नादानी की हुज्जतों से किनारा रख, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं और मुनासिब नहीं कि खुदावन का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नेकी नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे. शायद खुदावंद उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटें. आमीन. Another question is, how am I using my body? एक और सवाल, मैं अपने जिस्म का कैसे इस्तेमाल करता हूं? Let's read Romans 6, verses 16 through 23. Romans 6. Yes, 16 through 23. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है. लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्जंद हो गए जिसके सांचे में तुम डाले गए थे और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए हो. Till 18? Through 23. Okay. और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए हो. मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे. बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है. मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी. आमीन. Amen. So another question to ask yourself is, who are my friends? एक और सवाल अपने आप से पूछो कि मेरे दोस्त कौन ने. So let's look at 2 Corinthians chapter 6, verses 14 through 18.
2 Corinthians chapter 6, verses 14 through 18. खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बाले मसीह को ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है उर्दू में? I need help from someone for this verse. Belial. Okay, Belial. Okay, thank you. मसीह को बलियाल के साथ क्या मुफाकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चूंकि खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। आमीन। All right, we have about 4 more verses and then we're going to close. Proverbs 13, verse 20. इमसाल 13वां बाब 20वीं आयत। जो दनाव के साथ चलता है दना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। Proverbs 12:26. 12:26। सादिक अपने हमसाया की रहनुमाई करता है, लेकिन शरीरों की रविश उनको गुमराह कर देती है। Proverbs 18:24. 18:24। जो बहुतों से दोस्ती रखता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। आमीन। And Proverbs 22:24 through 25. गुस्सावार आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जाना। मुबादा तू उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। तू उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं, और ना उनमें जो कर्ज के जामिन होते हैं, क्योंकि अगर तेरे पास अदा करने को कुछ ना हो तो वो तेरा बिस्तर तेरे नीचे से क्यों खींच लें। Amen. So how we choose our friends is very important. ये बड़ा अहम है कि हम कैसे दोस्तों का इंतखाब करते हैं, या कैसे दोस्तों के साथ हमारा उठना बैठना और जिंदगी बसर करते हैं। If you're a friend with somebody who complains all the time, और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा शिकायतें ही करता रहता, pretty soon you find that you start complaining as well. और बहुत जल्द आपको भी पता चलेगा कि तुसी भी शिकायतें ही करने वाले बन जाओगे। So we need to be very careful about who we choose as our friends. ये बहुत मुताद होना होगा कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे दोस्त रखने और किस तरह के दोस्त हमारे साथ रहते हैं। So the next time I'm going to continue with more questions, but for now we're going to close with this prayer. और अगली बार मैं फिर आऊंगी बहुत सारे सवालों के साथ और आपको सिखाऊंगी। आइए हम इस दुआ के साथ आज का हिस्सा जो है उसके इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। Have mercy upon me, O God, कहें कि खुदावंद मुझ पर रहम फरमाइए, according to your unfailing love. अपने बेपनाह मोहब्बत के वसीला से, According to your great compassion. अपने बड़े उस जज्बे से जो आप मुझे बचाने के लिए रखते हैं।
Blot out my transgressions, blot out my sins that you've been revealing to me. खुदावन मेरे तमाम तर कसूरों को, मेरे तमाम तर गुनाहों को धो दीजिए और माफ फरमाइए जिनके लिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूं. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. मेरे तमाम तर गुनाहों को, नापाकियों को धो दीजिए और पाक फरमाइए खुदा. For I know my transgressions and my sin is always before me. क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे तमाम तर कसूर और गुनाह हमेशा मेरे सामने रहते हैं. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. और मैं हमेशा खुदावन आपके खिलाफ उन गुनाहों को अपने लिए गवाह ठहराता और बुरे कामों का शरीक हो जाता हूं और उन गुनाहों में मुब्तला हो जाता हूं. Create in me a clean heart, O God, खुदावन मेरे अंदर एक पाक दिल को पैदा कीजिए and renew a steadfast spirit within me. और खुदावन मेरे अंदर मुस्तकीन रूह को पैदा कीजिए. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. खुदावन मुझे बाहर मत कीजिए, अपना रूह मुझसे. Restore to me the joy of my salvation and grant me a willing spirit to sustain me. खुदावन मुझे बहाल फरमाइए और मैं उस Amen. आमीन. फिनिश. Yes. कितने लोगों